myself Varnika. Today I will teach you social study. The subject is social study. Subject social study. I will write a short form. And guess what? What a topic. You know that living things and non-living things. What is a living things? Living things. Living things. They take breath. जो सांस लेते हैं included are living things like you, me, plants, animals. So it's a called a living things. Plants, animal, man, and woman. And what is a non-living things? Non-living things. They do not take breath. जो सांस नहीं ले सकते हैं, we call it non-living things. They do not take breath means like marker, blackboard, chair. It's included are non-living things. Chair, marker. They do not goes anywhere. It's a non-living things. Living things and non-living things is included are environment. Environment. Environment means पर्यावरण. ये दो शब्दों से मिलकर बना है. पर्यावरण. They call a पर्यावरण. परि हमारे चारों ओर. The surrounded area is called a परि. चारों ओर. And आवरण means cover, ढका हुआ. हमारे चारों ओर से जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं या ढके हुए हैं, they called a पर्यावरण means environment. And environment it's a many causes of affected. Say I called a environment pollution. Environment pollution. What is the meaning of pollution? Pollution means contamination. Like किसी भी चीज का दूषित होना, संदूषित होना is called a pollution. But environment pollution, it's a very important part. I will discuss, but this is our topic. Environment pollution. So let's start class. The topic is environment pollution. I can explain it. Pollution is a similar word. Pollution is a similar word. Contamination. Contamination means I can explain दूषित होना. किसी भी चीज का दूषित होना is called a pollution. But what environment pollution? Natural resources का दूषित होना. Environment natural things. Natural things या natural resources हम यहाँ बोल सकते हैं. We call it natural resources. Natural resources का दूषित होना. Natural resources like water,
air because they are not a man-made things. इन्हें man-made things means इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है. They are natural. ये प्राकृतिक हैं. ये प्रकृति ने हमें गिफ्ट किया है, गिफ्टेड है ये. They are called as natural resources. They are natural things. Water, air, like land. It's a natural resources. इनका polluted होना या इनमें contamination होना, इनका दूषित होना ही environment pollution कहलाता है. Do you know that environment pollution? So environment pollution is a divided many parts, but I can explain only 4 parts. The 4 part of environment pollution is the 4 part of environment pollution is first air pollution. Environment pollution में बहुत ज़्यादा पार्ट है, but I can explain या I can discuss only 4 part. That is the first part, air pollution. You know that air, हवा. हम यहाँ हैं या हमारे चारों ओर कुछ भी हो या ना हो, बट हवा जरूर होती है. You not, आप उसको देख नहीं सकते हो, you not look at, but feel it. You can feel it कि हमारे आसपास आपको एयर एक फीलिंग होगी, then you can feel कि हवा हमारे आसपास है. और जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन इन्हीं एयर्स में ही मिलता है, बिकॉज दैट इज बहुत सारी गैसेस का यहाँ मिक्सर है. हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं. अब आते हैं पोल्यूशन. यू कैन नो दैट कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड इट्स इंक्लूडेड आर मैनी अदर गैसेस. लाइक पॉपुलेशन है तो लोगों को कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कहीं भी बहुत सारी अदर चीज़ों की यूज़ की ज़रूरत होती है, लाइक व्हीकल्स. सो फर्स्ट ऑफ द व्हीकल्स, हम व्हीकल्स पे आते हैं. जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, मीन्स वाहन का यूज़ करते हैं, व्हीकल्स वाहन. आप देखते हैं, यू नो दैट कभी भी आप गाड़ियों पे जा रहे हो या आपके आगे भी जा रही हैं, दैन यू नो दैट ये बहुत सारे अदर गैसेस या बहुत सारे हार्मफुल जो धुंध होता है, फॉग होता है, वो उनसे निकलता है, क्लाउड्स उनसे निकलता है, धुआं उनसे बाहर आता है. तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे एयर में मिक्सचर हो रहा है. तो एयर पोल्यूशन जो है, जो फर्स्ट रीज़न है वो है मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैस. हार्मफुल गैसेस, इट्स नॉट इंक्लूडेड ओनली व्हीकल्स. इसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ व्हीकल से ही, वाहनों से ही हमें मिल रहा है. इट्स अ फैक्ट्रीज, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, देन फैक्ट्रीज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं, इनसे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है. एंड दैट इज वॉल्कनो में भी जब कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, देन वहाँ से भी बहुत सारी हानिकारक गैस बिफोर ब्लास्टिंग एंड आफ्टर ब्लास्टिंग निकलती हैं. वो भी एक एयर पोल्यूशन का रीज़न है. एंड दैट एट दिस टाइम यू नो दैट फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग रही है, इमीडिएट लग रही है या किसी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, आप देखते होंगे काफ़ी न्यूज़ आती है, देन इट्स अ मेन प्रोसेस ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड द इफेक्ट इज harmful, very harmful effect. Many diseases you can handle it, means typhoid, dengue, fevers like this, बहुत सारी चीज़ें. And then it's not harmful for man and women also. It's a harmful for plant, animals. ये हम सब लोगों के लिए बहुत हानिकारक है एंड प्लांट्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं. Now come to our next type. Water pollution.
व्हाट इज अ वाटर? तो सिंपल वे, पानी। हमें जीवित रहने के लिए, वी नीड आवर लाइफ, हमें जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। यू नो दैट 75% वाटर इन अर्थ इज अ वेस्टेड वाटर। वो यूजलेस नहीं है, वेस्ट है बट इट्स आर नॉट यूजफुल टू अस। हम लोगों के लिए वो यूजफुल नहीं है। हमारे लिए यूजफुल है 25% लैंड में ही जो वाटर है। सो ये बहुत ही कम है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर अस। बट अब क्या हो रहा है, इसमें पोल्यूशन कैसे हो रहा है? जो फैक्टराइजेशन मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कॉल्ड अ बिफोर, मैंने फैक्टराइजेशन बताया, इनसे निकलने वाले धुएं एयर पोल्यूशन का मेन रीज़न है। और इनसे निकलने वाले वेस्टेज, गंदे पानी, वो हमारी वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न है। दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, मैन, वुमेन एंड एनिमल्स ऑल्सो। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये वाटर, जो साफ पानी आप देख रहे हैं रिवर्स में ड्रॉप कर दिया जा रहा है, फैक्ट्रीज के पानी, गंदे नाले के पानी, ये हमारे कूलर वाटर को, जो क्लीन वाटर है, उसको बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहा है एंड दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल। और ये पानी जब हम यूज़ करते हैं लाइक पीने के लिए, क्योंकि ये पानी हमारे नेचुरल ड्रॉप डाउन में जा रहा है, यू नो दैट, जब वो नीचे जा रहा है वही पानी हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। लाइक बॉडी पार्ट्स का डिले होना। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही काफ़ी ज़्यादा उनमें ऑर्गन्स की कमी होती है, मीन्स कभी हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में, डू यू नो दैट। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें फीवर अचानक आ रहा है या फिर हम गंदे पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें टाइफाइड जैसी बीमारियां भी फेस करनी पड़ रही हैं। ये इसका मेन इफेक्ट है, मेन इफेक्ट। नाउ गो टू नेक्स्ट टाइप्स, लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। लैंड एंड सॉइल, जमीन या मृदा, मिट्टी की बात हो रही है, अबाउट अ मिट्टी। क्या है यहाँ पे लैंड एंड सॉइल्स में? सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है फॉर अ एग्रीकल्चर। फॉर अ एग्रीकल्चर, यू नो दैट एग्रीकल्चर, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर? मीन्स खेती। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, फार्मिंग। क्योंकि हम भारत की या हम अदर भी कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या डिपेंड ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग पे डिपेंड है। लोग खेती कर रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड ऑन ओनली फॉर एग्रीकल्चर, मीन्स फार्मिंग। देन क्या हो रहा है लैंड और सॉइल पोल्यूशन में? बिकॉज बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो प्लास्टिक का वर्क कर रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। डू नॉट लेफ्ट इट, हम इसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसे क्या किया जाता है, मिट्टी में ही ड्रॉप कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है मिट्टी से, ताकि ये फिनिश हो जाए, वहीं पे उसका समापन हो जाए, बट इज नॉट वेस्टेड। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी लैंड एंड सॉइल है उसकी जो उर्वरता शक्ति है, यू नो दैट उर्वरता मीन्स जो एनर्जी पावर है, हम सबकी एक एनर्जी पावर्स होती है, ऐसे ही लैंड एंड सॉइल की भी एनर्जी मीन्स मिट्टी की भी एनर्जी पावर होती है। इसी एनर्जी पावर के थ्रू जो भी हम पौधे लगाते हैं, देन ग्रो अप, हम उन्हें सींचते हैं, लेकिन वो पावर कैच करता है, मिट्टी उन्हें भोजन बो देता है, तो वो नष्ट हो रहा है किसके थ्रू? लाइक प्लास्टिक। हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं बट हम उसे थ्रो कर देते हैं, ऐसे ही कहीं पे फेंक देते हैं, एंड कुछ लोग उसको मिट्टी में दबाना सही समझते हैं, बट इट्स नॉट फॉर इफेक्टेबल। हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं है, ये बहुत ही गलत प्रोसेस है। ये क्या कर रहा है, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको खत्म कर रहा है। इससे मिट्टी क्या हो रही है, बंजर हो रही है, एंड हमारा एग्रीकल्चर भी प्रोसेस में ज़्यादा नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, लाइक फैक्टराइजेशन, जो फैक्ट्री है, जो लोगों का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये भी बहुत कहीं ना कहीं इफेक्टेबल है इसके लिए। नाउ गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप नॉइज पोल्यूशन। नॉइज यू कैन अंडरस्टैंड, एवरीवन नो इट। नॉइज मीन्स होता है ध्वनि, आवाज। नॉइज मीन्स होता है ध्वनि या आवाज। नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे हम आ रहे हैं तो फिर हम यहाँ उन्हीं पॉइंट पे आ रहे हैं, लाइक इंक्लूडेड आर व्हीकल्स, included are factories, included are industrialization, and everything। इससे क्या हो रहा है? व्हीकल्स मीन्स आप जाते हो बाहर, आप जो हॉर्न प्रेस कर रहे हो या फैक्ट्रियों से जो साउंड हो रहा है, इनसे कहीं ना कहीं जाकर के बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ओजोन लेयर पे। आप जानते हो, डू यू नो दैट, कि अर्थ के चारों ओर एक ओजोन लेयर है। तो ये जो पोल्यूशन है ये उनको भी इफेक्ट कर रहा है, प्लस ह्यूमन बीइंग लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। इससे बहुत सारे ऐसे कॉजेज हो रहे हैं, ऐसे डिसीजेस हो रहे हैं जो अभी तक फेस नहीं किए गए हैं। टाइफाइड, बॉडीज पेन एंड आपकी एनर्जी का कम होना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। सो दैट इट्स अ 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। दे इंक्लूडेड एनवायरमेंट, और ये हमारे एनवायरमेंट को वीक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, दैट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और इन फ्यूचर दैट एट दिस टाइम नो दैट, आप अभी भी देख सकते हैं काफ़ी इफेक्टिबल है। वाटर रिसोर्सेज हमारा कम हो रहा है और काफ़ी चीज़ें आपने देखा हुआ है, हमारा एयर जो है इतना पोल्यूटेड है, मीन्स हम अगर सांस भी ले रहे हैं देन उससे भी हमें काफ़ी बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। इट्स अ वेरी इफेक्टिबल। सो दैट इज आवर टॉपिक। Thank you for watching my video class.